today we are going to read about the topic review of Python. Moving further, first is introduction, that Python was created by Euro von Rossum, and the second main important thing in this whole page is that Python is based or influenced with two programming languages, which is ABC language and Modula 3. First important topic is tokens. It is the smallest element of Python script that is meaningful to the interpreter. Tokens are identified or divided into 5 types: keywords, identifiers, literals, operators, and punctuators. First is keywords. So keywords are the reserved words and have special meaning for Python interpreter. मीन्स कीवर्ड्स कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ऐसे फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन इंटरप्रेटर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग रखते हैं. आप इनको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. यू कैन नॉट यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस. एंड आप इनको आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते हो, विच विल बी रीड फर्दर इन द वीडियो. So given below is a partial list of some keywords in Python. Now moving further is identifiers. Identifiers are the names given to different parts of program like variables, object classes and functions. And yeah, it's just names. Like maths में आप variables use करते हो, वैसे ही identifiers are the same thing just in Python. एंड जब हम आइडेंटिफायर बना रहे होते हैं तो इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है. फर्स्ट इज दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट. लाइक इट इज एन आर्बिट्ररी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट. दैट मीन्स कितना भी लंबा एक सीक्वेंस लेटर या डिजिट का हो सकता है, it doesn't matter. Second thing is that the first character must be letter or underscore. That means पहला कैरेक्टर लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है, कोई डिजिट नहीं हो सकता है. अपर एंड लोअर केसेस आर डिफरेंट. दैट मीन्स पाइथन आपको आपके कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग नाम की तरह या अलग अलग आइडेंटिफायर की तरह ट्रीट करेगा. सो या the fourth point is that 0 to 9 are digits are allowed except for the first character. अभी बोला था कि डिजिट्स कोई भी आप यूज कर सकते हो एक्सेप्ट आप उसको फर्स्ट कैरेक्टर नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर. एक्सेप्ट अंडरस्कोर देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टर allowed, and even a space is not allowed between your identifiers. Second thing or the last thing that is important is that it must not be a keyword. मतलब कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड. यू कैन नॉट यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस. सो कीवर्ड्स इज नॉट अलाउड. सो लास्ट पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे लाइक ABC, X1 to Y, India underscore 1 to 3. So these are some examples of identifiers जिससे आप इन rules को थोड़े better समझ सकते हो. Moving further, we have literals. So literals are data items that has a fixed value. It is divided, or there are 4 types of literals basically: string literal, numeric literal, boolean literal, and special literal, which is none. सो स्पेशल लिटरल के बारे में हम 12th में नहीं पढ़ते हैं, सो हमारे लिए सिर्फ 3 ही लिटरल के टाइप इम्पॉर्टेंट है. मूविंग फर्दर विद स्ट्रिंग लिटरल. तो स्ट्रिंग लिटरल इज अ कैरेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर enclosed in double or single quotes. It can be either single line string or multi line string. सो कुछ ऐसे कैरेक्टर जिसको आप डबल या सिंगल लाइन क्वोट में एनक्लोज कर दो, बंद कर दो, दैट इज स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग जो होता है वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी हो सकता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी हो सकता है. मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपको सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए आप सिंगल या डबल कोट यूज कर सकते हो. फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग either यूज ट्रिपल कोट और just put a hashtag at the sorry just put a uh, just put a just put the backslash at the end. Yeah, just put a backslash at the end. तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह आपके लिए काम करेगा. Now given below is a list of escape characters which are important.
The two main important is hash backslash n and backslash t. So backslash n is for new line. That means आपका जो line है वो मतलब जब आपका पाइथन कोई कोड प्रिंट करता है बाय चांस, अगर आपने न्यू लाइन ऐसे डाला हुआ है तो वो एक लाइन के नीचे नीचे करके प्रिंट करेगा। एंड बैकस्लैश टी में वो एक बीच में एक हॉरिजॉन्टल टैब जितना, हॉरिजॉन्टल टैब मतलब एक बड़ा स्पेस छोड़ के फिर आपके आउटपुट को प्रिंट करेगा। दैट्स इट। Moving further with numeric literals, so numeric literals are again of three types: integral, floating, and complex. Integral, that means like integer, इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन हो सकता है, कोई भी डिजिट होना चाहिए बट इट डज नॉट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे लाइक 1 2 3 4 +23 -56। The second thing is floating point literals, means floats, जो जिनको आप real literals भी कहते हो। इनके लिए ये फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं बेसिकली, मतलब जो भी डेसिमल वाले हो गए। नाउ लास्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स, जिसका आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो बट इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम, ये दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। फर्स्ट इज रियल पार्ट एंड सेकेंड इज इमेजिनरी पार्ट। जहाँ एग्जाम्पल दिया है दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 + 0i, 1 is your real part and 0i, which is 0 iota, is your imaginary part. The next is Boolean literals. So Boolean literals in Python is used to represent one of the two Boolean values, that is true or false. एंड यहाँ पे लिटरल्स का टॉपिक खत्म होता है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि स्पेशल लिटरल्स को हम क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज और द नेक्स्ट टोकन इज पंक्चुएटर्स. So punctuators are the symbol that is used in programming languages to organize sentence structure and indicate the rhythm and emphasis of expression, statement and program structure. कुछ common punctuators है hashtag, जिसको आप comment की तरह use करते हो, brackets, different type of brackets like parentheses, square brackets, curly braces, like that. बेसिकली पंक्चुएटर्स कुछ नहीं होते, कुछ सिंबल्स जो कि सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे या आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड लाइक दैट. नाउ ऑपरेटर्स आर द लास्ट की टोकन, या सो दीज आर सिंबल्स जो कि कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराने में मदद करते हैं ऑन वेरिएबल्स, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई देख रहे हो, डिवाइड भी देख रहे हो. So these are a list of operators and their symbols. So you can pause the video to note it down. Moving forward is input and output. Means there are some built-in functions in Python. Built-in functions are those functions जो कि Python की library में already exist करते हैं. You don't have to define it. You just either built-in functions are those functions जो कि पहले से ही पाइथन लाइब्रेरी में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है फॉर टू यूज़ इट एक्चुअली. सो इनपुट करने के लिए मीन्स इफ़ यू हैव टू इनपुट एनी डेटा, जो कि आप हर पाइथन के प्रोग्राम में करते ही हो, आपको डेटा तो कुछ इनपुट करना ही होगा, उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं. वेरिएबल इज इक्वल्स टू इनपुट एंड इन पैरेंथेसिस आपको जो भी मैसेज डालना है इज इट सिंटैक्स, जो कि आपको दिख रहा होगा सिंटेक्स. तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इनपुट फंक्शन कोई भी वैल्यू या कुछ भी आप दे रहे हो उसको स्ट्रिंग लिटरल में ही लेता है. लाइक द एग्जाम्पल जहाँ पे आपने मार्क्स में 100 इनपुट किया, वी नो 100 इज एन इंटीजर, तो जब मैंने उसका टाइप चेक किया तो उसमें वो इंटीजर में आना चाहिए था, राइट, इंटीजर में आना चाहिए था, बट इट डजंट कम इन दैट. जब हमने टाइप किया तो वो अगेन स्ट्रिंग में दिखा रहा था, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यूज आपसे लेता है, जो भी मैसेज या कुछ भी आप डाल रहे हो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट और यू कैन से स्ट्रिंग लिटरल में ही लेता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको नहीं चाहिए, बिकॉज इफ इट इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट आप उस पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो लाइक प्लस माइनस. सो अगर आपको उसको चेंज करना है इनटू इंटीजर और फ्लोट, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट
add a int in front of your input with a parenthesis again, and अगर आपको उसको float में change करना है तो just write float float, and you can see it on the screen right now. That's it. Now moving to output. So output के लिए Python output function ही यूज नहीं कर लेता है, उसके लिए एक print नाम का फंक्शन होता है जो कि आप मोस्टली अपने कोड्स में अब तक देख पाते होंगे. So print is a function, again it is a built-in function जो कि Python कोई भी आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए यूज करता है. Here is a code जो कि सबसे पहले यूजर अंडरस्कोर नेम इज योर आइडेंटिफायर, जिसको जो आपने दिया है, जो आपने असाइन किया है, इज इक्वल्स टू इनपुट प्लीज एंटर योर नेम. सो प्लीज एंटर योर नेम इज अ मैसेज जो कि आपने डाला है, एंड इनपुट इज योर फंक्शन, ताकि आप कोई डेटा अंदर डाल सको. जब वो रन हुआ तो उसने आपसे कोई नाम पूछा एंड यू पुट जतिन, आपने एंटर किया जतिन. देन उसने प्रिंट कराया वेलकम कॉमा यूजर नेम. वेलकम इज अगेन योर मैसेज जो कि वो हर बार प्रिंट करेगा ही. उसके साथ यूजर अंडरस्कोर नेम इज योर आइडेंटिफायर. तो आपने जो भी पहले को डाला था, दैट आपने जतिन डाला था, तो वहाँ पे वो वेलकम जतिन प्रिंट हो गया. आप कुछ भी डालोगे वो उसके साथ प्रिंट हो जाएगा. लास्ट में फिर हमने कोड डाला है प्रिंट पैरेंथेसिस में यूजर अंडरस्कोर नेम, एंड देन अगेन आपने एक मैसेज डाला है जो कि उस यूजर अंडरस्कोर नेम के साथ वो प्रिंट कर देगा. सो उसने प्रिंट कर दिया जतिन, एंड कॉमा let's learn Python programming is again your message जो कि उसने